Good morning, class. This is the question, practice question from your unit number 2. So this question I've tried including everything from your unit number 2, and if you practice this question, your unit number 2 will be ready. So let's get started. So the question is, examine the importance of demand forecasting in the management of the supply chain. So you have to examine what is the importance of the demand planning, why demand planning is so important in the management of the supply chain. Okay, so you are required to elucidate the process of integrating and utilizing the various sources of demand data to enhance the accuracy of demand prediction model. Why we use demand prediction model? Also, you have to illustrate various methodology for the demand forecasting and their practical implementation in the real life situations. So are you understanding the question? You are required, the first thing is you have to write the importance why demand planning is required in the management of the supply chain. Next, you are asked to elucidate the process of integrating. What is the process of integrating and utilizing the various sources of demand data? कहाँ कहाँ से आप demand data लेते हो और फिर उसको कैसे use करते हो to enhance the accuracy of the prediction model. Prediction model मतलब जो आप demand forecasting करते हो तो उसको उसकी proper forecasting है वो accurate हो तो वो कैसे होता है, like what are the demand sources data that you use is the second need of the second required thing from your question. Okay, third is you need to write on the you need to illustrate the methodologies for the demand forecasting. Demand forecasting के लिए कौन-कौन से methodology use होते हैं? And the fourth thing that is asked is the practical implementation in the real life situation. Okay, so this question is 4 parts, 1 plus 2 plus 3 plus 4. You know the question is for 12.5 marks. So almost this will be for 3 marks, 3 marks, 3 marks, and this will be 3.5 marks. Okay, so you have to write accordingly. So if you lose any of the part, then you'll be losing that marks. Okay, so in exam also you are being like given this way, step marking is there because the question comes in parts. Okay, so let's get started. Let's see how we can answer this question. So firstly, I have always told you that before writing, you can just give an introduction paragraph because that looks that gives the comfort that you are ready to deal with all the parts of the questions. Okay, so you can just write a 3 to 4 sentences there that the demand planning, you know, is a very critical component of the supply chain management. It involves the forecasting of the customer demand so as to ensure that the product is available to meet the demand while minimizing the cost. है ना? So effective demand is essential for various reasons. So now you are discussing on the first point on the importance of demand planning. क्यों demand planning करते हैं? Okay. So the very first point is inventory optimization because we want the inventory to be optimized. We don't want the inventory to be overstocked or understocked. Okay. We want an optimal inventory level. Okay. We want the cost to be reduced. We want the demand forecast to be such an accurate that it leads to reduction in the cost associated with the जो भी cost like overproduction हो या storage हो या obsolescence हो या फिर उसको गोडाउन में रखने का जो खर्च हो कहीं भी कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए अगर वो ऑप्टिमाइज रहेगा अगर जितनी डिमांड की रिक्वायरमेंट है उतनी डिमांड की जाएगी डिमांड फोरकास्टिंग एक्यूरेसी रहेगी तो उससे रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं लाइक ओवर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज वगैरह का खर्च वो नहीं होगा तो क्या होगा कॉस्ट रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर आप इंश्योर करते हो कि आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है व्हेन द कस्टमर इज डिमांडिंग कभी भी ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग नहीं हो रही है तो फिर कस्टमर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगे है ना और आपका सर्विस लेवल बेटर होगा फिर रिसोर्स एलोकेशन तो अगर आप डिमांड फोरकास्ट सही करोगे अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे रिसोर्सेज एलोकेट करोगे अकॉर्डिंगली आप लेबर लाओगे अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अपना चेक करोगे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक अकॉर्डिंगली लगेगा है ना अगर डिमांड फोरकास्टिंग गलत है फिर तो आगे की सारी कहानी ही गलत हो जाएगी ओके नेक्स्ट है सप्लाई चेन एफिशिएंसी सप्लाई चेन एफिशिएंसी कैसे आप मतलब आपका अच्छा हो जाएगा अगर डिमांड फोरकास्ट अच्छा करोगे तो बिकॉज यू नो दैट प्रोडक्शन शेड्यूल जो है ना वो किससे अलाइन रहता है वो आपका डिमांड से अलाइन रहता है फिर प्रोक्योरमेंट प्लान उससे अलाइन रहता है उससे अलाइन रहता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी एंड फिर आपका मार्केट डिमांड तो अगर मार्केट डिमांड गलत है तो आपका प्रोडक्शन शेड्यूल प्रोडक्शन प्लान डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी सब गड़बड़ हो जाए दैट्स व्हाई वी एक्चुअली नीड टू हैव अ
एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, अगेन रिपीटिंग द रीजंस, एक तो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन चाहिए आपको, कॉस्ट आपका रिड्यूस करना चाहते हो आप, कस्टमर बेटर सेटिस्फाई होंगे, रिसोर्स बेटर यूज होगा, और आपका सप्लाई चेन एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, राइट। तो दिस इज द रीजंस व्हाई वी वांट इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, राइट। Next is integrating and utilizing various sources of demand data. How can you integrate and utilize, जहां जहां से आपको डिमांड सोर्स डेटा मिल रहा है, कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो? तो सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स यू नीड टू गैदर द डेटा फ्रॉम ऑल द हिस्टोरिकल सेल्स, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर ऑर्डर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोशल मीडिया, वेदर फोरकास्ट, हर जगह से आप क्या करोगे कि डेटा कलेक्ट करोगे। ओके, तो हिस्टोरिकल डेटा से आपको क्या मिलेगा? पास्ट डिमांड का पैटर्न पता चल जाए। मार्केट ट्रेंड से आपको समझ में आएगा कि कस्टमर किस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, शिफ्ट ऑफ द कस्टमर्स पता चल पाएगा। कस्टमर का टेस्ट और डिमांड पैटर्न पता चल पाएगा। ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर से आपको रियल टाइम, जब कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता है ना। एक्सटर्नल फैक्टर से आपको इकोनॉमी के कंडीशन का, वेदर कंडीशन का पता लगेगा, जियोपॉलिटिकल इसका पता लगेगा। दूसरा डेटा, ये तो हो गया डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन आप इन जगहों से कर सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट कर सकते हो जिससे पास डेटा पता चलेगा, मार्केट ट्रेंड पता चलेगा, फिर कस्टमर ऑर्डर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर डेटा को इंटीग्रेट कैसे करना है? डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है? डेटा वेयर हाउसिंग करना, मतलब सबसे पहले तो सारे डेटा को एक जगह पर रखना है। ओके, सो यू कैन यूज द डेटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस, है ना, सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि सारे डेटा को क्लाउड वगैरह पे एक जगह पर रखे स्टोर करेंगे, एंड देन डेटा सारे जगह से आकर के वही इंटीग्रेट होगा, स्टोर होगा। देन यू कैन यूज सम टेक्निक्स लाइक ट्रांसफॉर्म या लोड, ईटीएल बोलते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। तो ईटीएल वगैरह प्रोसेसेस आप यूज करोगे टू क्लीन द डेटा, मतलब क्या डेटा आपके काम का नहीं, जो आपके काम का नहीं, क्योंकि डेटा तो बहुत बिग सेट ऑफ डेटा होता है, तो उसमें से आप क्लीन अप करते हो कि क्या क्या डेटा आपके काम का नहीं, जो काम का नहीं आप उसको बाहर निकाल दोगे, और फिर उस डेटा को इंटीग्रेट करोगे, जो यूजेबल डेटा है उसको इंटीग्रेट करोगे, और फिर टेबल्स एंड चार्ट्स बनाकर फिर आप उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात डेटा डेटा इंटीग्रेशन की। ओके, डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट मूविंग टू द डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या करते हैं कि यू, आपने जो डेटा क्लीन किया, जो स्टोर किया, जो क्लीन किया, उस डेटा को आप क्या करोगे? हिस्टोरिकली बार ग्राफ, चार्ट्स और ये सब लगाकर, फिर मशीन लर्निंग टेक्निक्स लगा करके एनालाइज करते हो, इंटीग्रेट करते हो, फिर आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, और उस पर आप लगाते हो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कैसे लग सकता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? मॉडल बनाते हो। मॉडल बनाते हो, मॉडल मतलब आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बनाकर देखते हो कि विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग, और क्या बेटर मॉडल रहेगा जिससे हमारा होल सप्लाई चेन एफिशिएंसी बढ़ जाए, राइट। तो कंटिन्यूअसली आप वैलिडेट करते हो, अपडेट करते हो अपने प्रिडिक्शन मॉडल्स को विद द न्यू डेटा वट एवर इज कमिंग, विद द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, और फिर क्या करते हो? बैक टेस्टिंग करते हो, फिर मॉडल रिफाइनमेंट करते हो। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल आउटकम को मेजर करते हो, एक्चुअल आउटकम और जो आपका फोरकास्टेड आउटकम है उसको कंपेयर कंट्रास्ट करते हो, और फिर मॉडल रिफाइनमेंट में मतलब उसमें जो भी वैलिडिटी रिजल्ट्स आते हैं उस पे आप वैलिडेशन रिजल्ट जो आता है उस पे आप इंप्रूव करते हो टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। ओके, राइट। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। देन द मेथडोलॉजी। क्या मेथडोलॉजी है डिमांड फोरकास्टिंग करने की? डिमांड फोरकास्टिंग करने की ये सबसे पहली जो मेथडोलॉजी सबसे सिंपल होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। टाइम सीरीज मतलब आप हिस्टोरिकल डेटा जो कलेक्ट करे हो, आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न्स और ट्रेंड्स, वो क्या करते हो? उसका वो आप नंबर ऑफ ईयर्स का एक साथ ही कलेक्ट करते हो, राइट। पूरे हिस्टोरिकल डेटा, नंबर ऑफ सो मेनी इयर्स का आप एक साथ कलेक्ट करते हो। इसमें बेसिकली टेक्निक जो लगाते हैं वो नॉर्मली हम लोग मूविंग एवरेज वगैरह या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या एरिमा, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेशन बोलते हैं, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेशन, मूविंग एवरेज, ये सारे टेक्निक्स लगाते हो। और फिर रिटेलर्स बेसिकली नॉर्मली इवन द स्टॉक मार्केट एंड ऑल दीज दे just give you this the time series analysis to forecast the sales better based on the past data. Okay, and it is adjusted for the seasonal वेरिएशंस, है ना। सीजनल वेरिएशन के जो डिमांड जो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते हैं, वोलेटिलिटी, उसको नलीफाई कर देता है, राइट। तो पहला मेथडोलॉजी हो गया टाइम सीरीज। दूसरी हो गई कॉजल मेथड्स। कॉजल मेथड्स मतलब बेसिकली इट आइडेंटिफाइज एंड क्वांटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, है ना, जैसे प्राइस, प्रमोशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो इनसे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है रिग्रेशन लगा करके। ओके, तो रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकल मेन इसका होता है। रिग्रेशन और इकोनोमेट्रिक्स मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉजल मॉडल्स का।
जिसमें हम देखते हैं कि क्या ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ना, हमारे आउटकम को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसमें जो मेथड लगाते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन वही कंज्यूमर गुड्स कंपनीज करती है टू यूज टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन, कि एडवर्टीजिंग ऐसा वाला करने से, अमिताभ बच्चन के साथ करने से फायदा हो रहा है, कि ये वाला मोदी जी की आवाज में करने से हो रहा है, एंड ऑल दीज थिंग टू एनालाइज द इकोनॉमिक चेंजेस ऑन द डिमांड प्रोडक्ट डिमांड। ओके, next is machine learning models. Machine learning models is another thing that it basically employs the algorithms to learn the historical data to predict the future demand, है ना, historical data से future demand कैसे निकालना है। then we use the techniques such as इसमें जो मतलब आपका यूज होता है मशीन लर्निंग में, जो यूज होता है ये बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स होता है, न्यूट्रल नेटवर्क्स होता है, ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट और ऑल दीज आर टेक्निक्स जिससे आपको पता है, मतलब जिससे विजुअली आपको पता लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, रीजंस क्या है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब आपको चार्ट्स मिल जाता है, राइट। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ना वो मशीन लर्निंग को लेकर के फ्यूचर डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं टू अंडरस्टैंड द यूजर बिहेवियर, द ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड परचेज पैटर्न्स, ये सबको यूज करके वो अपना प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में यूज करते हैं, राइट। Then collaborative forecasting is another methodology to have a proper demand forecasting. तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि सप्लाई चेन जितने कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग, इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास एज वेल, कि जितने सारे आपके सप्लायर्स हैं उनको आप क्या करते हैं, कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं और उन सबका डेटा मंगा के एक साथ ही रखकर उस पर फिर आप एनालाइज करते हो। तो इसमें बेसिकली जो होता है कोलैबोरेटिव प्लानिंग फोरकास्टिंग रिप्लेसमेंट सीपीएफआर टेक्निक है वो यूज होता है। और बेसिकली इसको मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स यूज करते हैं टू शेयर सेल्स डेटा, है ना, हर किसी का सेल्स डेटा एक जगह ला करके मार्केट इनसाइट्स को चेक करने के लिए यूज करते हैं टू इम्प्रूव द डिमांड फोरकास्ट, है ना। लास्ट इज द सैमुलेशन मेथड। सैमुलेशन मेथड में क्या होता है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स मेथड होता है बिकॉज वी यूज द प्रिडिक्ट डिमांड अंडर वेरियस सिनेरियोज। हम बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट करते हैं। इसका टेक्निक जो होता है मोंटे कार्लो सैमुलेशन होता है, सिस्टम डायनेमिक्स होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे हम टेक्निक्स को एक जगह ला करके, बहुत सारे सिचुएशंस को बेसिकली एक जगह ला के और काफी सारे टेक्निक का मिक्स एंड मैच करके फिर हम केसेस बना के देन वी चूज ऑन। ओके, तो इसको बेसिकली एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ही यूज करते हैं टू फोरकास्ट द डिमांड कंसीडरिंग द मल्टीपल सिनेरियोज। अगर इकोनॉमी ऐसा रहा, अगर ये अनसर्टिनिटीज रही तो, है ना, ऑन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथडोलॉजीज फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, we have discussed the importance, we have discussed the data, demand data. Okay, so the second discussion was on the forecasting importance is done. Second was about the process of integrating, okay, how it can be integrated. The third was the methodology, and the fourth we are discussing is the practical implementation. Okay, so let us just discuss the fourth part of the question. So practical implementation in the real life situations. So firstly the retail industry, actually the retail industry जो होता है वो बेसिकली नॉर्मली टाइम सीरीज एनालिसिस ही यूज करते हैं बिकॉज टाइम सीरीज डेटा बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल सेल्स डेटा होता है और उसी के डेटा पे आप काफी साल का डेटा लेते हो और फिर मशीन लर्निंग मॉडल अगर लगाते हो तो आपको पता लग जाता है कि डिमांड का पैटर्न क्या है फॉर ऑल द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, तो जनरली ये रिटेल चेन स्टोर्स लगाते हैं टू गेट द इन्वेंट्री लेवल, की ऑप्टिमम इन्वेंट्री का लेवल क्या है, स्टॉक आउट्स ड्यूरिंग पीक सीजन क्या होगा, है ना, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसका ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है पीक टाइम में, मिनिमाइजिंग द एक्सेस इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीक ऑफ पीरियड, है ना, तो इसलिए यूज होता है। बाकी जो है कंज्यूमर गुड्स भी यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कॉसल मेथड को हम यूज करते हैं, मॉडल्स को यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रमोशनल एक्टिविटी। कॉजल मेथड इफ यू रिमेंबर रिग्रेशन वाला था, ऑटो रिग्रेशन वाला। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज को अगर हम लगाएं या कुछ और ऐड यूज करें या कुछ और वेरिएबल्स यूज करें तो उसका क्या फर्क आएगा। तो टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस चेंजेस एंड द डिमांड, तो प्राइस के कितने चेंज होने से डिमांड कितना चेंज हो रहा है वगैरह अंडरस्टैंड करने के लिए तो कंज्यूमर गुड्स बेसिकली यूज कर लेते हैं ऑटो रिग्रेसिव मेथड एंड ऑल दिस, ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी जो है वो बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करता है टू like understand the customers to customer demand, to understand the how the company can personalize the मतलब कैसे कंपनी पर्सनलाइज करके किसी प्रोडक्ट को दे सकता है अपने वेबसाइट इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, बेटर विंडो करने के लिए अपना, है ना। तो वो यूज करते हैं। बाकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी यूज करता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली
अपना ये प्रोडक्शन शेड्यूल वगैरह जानने के लिए एंड सप्लाई चेन ऑपरेशंस को बेटर करने के लिए एंड आल्सो टू मैनेज द प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल दिस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दे आल्सो यूज दिस data forecasting methodology that we have discussed. Okay, so and collaborative forecasting के लिए भी collaborative forecasting के लिए भी यूज होता है मीन्स क्या होता है ना कि this is the case study been taken. A leading electronics manufacturer collaborates with its major supplier, है ना, using the CPFR technique था ना, collaborative partnership forecasting technique. Okay, तो इसमें आप क्या करते हो, अपने जो suppliers हैं उनके साथ collaborate करते हो and by sharing the sales data and inventory level, market trends, they jointly develop the demand forecast, है ना, सब सारा data अपना जो है वो share करते हैं और एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं जिससे क्या होता है कि बेटर डिमांड फोरकास्ट होता है रिजल्टिंग इन अ बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिड्यूस लीड टाइम एंड improve the customer satisfaction. Okay, so this question I guess it asked about the advantage disadvantage. The advantage disadvantage was asked there. Let's see. Effective illustrate the various methodologies for demand forecasting in the practical. No, it has not been asked yet. I have given the slide of the advantage disadvantage. You can just go through that. The advantage of using the demand forecast is इससे आपका accuracy बढ़ जाए, cost efficiency, customer satisfaction, improved decision making. Then challenge वही है data integration, complex model, data quality, cost management, capital management. Okay. Then you have to write a conclusion that if you use these data forecasting techniques, then you can better plan for the demands and it can thus lead to the effective whole supply chain operation जो होगा वो effective हो जाएगा और आपका overall performance जो होगा वो better हो जाएगा. So this way you are expected to write a question for 12.5 marks. 12.5 नंबर का लिखने के लिए आपको प्रॉपरली हर एक पार्ट को डील करना है. हाँ, कहीं कहीं मैंने जैसे कि मेथोडोलॉजी में मैंने 5 मेथोडोलॉजी लिख दिया, आप 3 मेथोडोलॉजी भी लिखोगे तो इट इज फाइन. ठीक है, आपने कॉजल लिख दिया, टाइम सीरीज लिख दिया, मशीन लर्निंग लिख दिया तो इट विल बी फाइन. ओके, तो आप 2 से 3 भी लिखो, 2 नहीं 3 लिखोगे एटलीस्ट फॉर 3 मार्क्स. इफ यू आर राइटिंग 3 देन इट्स फाइन, 5 लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so this is just a demonstration of how you are expected to write the questions and what is the how like you can expect the question to be given in your paper. Okay, what can be the pattern that you may expect from your paper, right? For the paper of this supply chain analytics. So thank you so much. किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ समझ ना आया हो, you can just write in the comment box. I'll be dealing with that. Okay, I'll make sure that you understand the point. Thank you so much. Meet you in the next video. Bye bye.